horizontal projectile. Already we have studied the path of projectile. Here, path of a projectile. If it is projected from particular height h, if this range is r, we have derived the equation of projectile. The y is equal to kx square. Yes. Means already we have derived that y is equal to kx square. It means the path of the projectile is parabolic. Now, what will be the time of flight? Time of flight. Here, when it is projected horizontally with initial velocity u, then the vertical velocity it is 0. Downward velocity it is 0. Initial downward velocity is 0. Since the initial downward velocity, what is the time of flight? Time taken by the projectile to flight in space is known as the time of flight. Time taken by the projectile during its motion in space. लिख सकते हो so the time of flight. Time of flight means time taken by the projectile during its motion in space is known as the time of flight. ये definition लिख सकते हो. The time taken by the projectile during its motion in space is known as the time of flight. If particle is projected with initial velocity u, the initial downward velocity will be 0. If t be the time, t means capital T be the time taken by the projectile, t be the time taken by the projectile to reach the ground, then according to equation of motion, s is equal to ut plus half at square. S is h, downward velocity is 0, half g t square. So the time of flight t is equal to, therefore time of flight t is equal to 2h upon g square root. Here you see 2h upon g. That will be the time of flight. It is time of flight t is equal to root 2h upon g. ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ वर्टिकल हॉरिजॉन्टली किसी इनिशियल वेलोसिटी उसे फेंका जाता है, तो जब कभी ये हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होती है. दो चीज़ें अगर 90 डिग्री फेंका जाए तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि एक का कंपोनेंट अगर उसके अलॉन्ग लेंगे तो कास, जैसे इसका कंपोनेंट अगर हम इसके अलॉन्ग लेंगे u cos 90 और cos 90 वैल्यू 0, तो कभी अफेक्ट नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंट वेलोसिटी कहलाती है. तो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन तो है लेकिन वर्टिकल मोशन it will be 0. So here we have taken it is 0. What will be the range of the
So here we will calculate the range, time of flight, range of the projectile, range of projectile. Horizontal distance traveled by the particle is known as the range. You can note down the horizontal distance traveled by the particle is known as the range. Horizontal distance traveled by the particle is known as the range. Here horizontal distance it is r. This horizontal distance r. So the horizontal distance r is equal to horizontal distance r is equal to horizontal velocity into time of flight. Horizontal velocity into time of flight. Time of flight. Here you have the horizontal velocity u, time of flight that is t, and here this is u root 2h upon g. So u into root 2h upon g, this is the range. Here r is equal to u square root of 2h upon g. This is the horizontal range. Now velocity at any instant we will consider. Here what will be the velocity at any instant, we have to take care. Here suppose particle reaches at this point, horizontal distance x. Here this is the y. Then velocity it is equal to, here it is vx, it is vy. So if this angle here it is the beta. ये हो गया है, इसको हमने करवा दिया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। हर तो उसमें हुआ था ना, अभी इसको करना वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ऑलरेडी वी हैव डन। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट at any instant ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था, फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे नोट डाउन, सपोज ए पार्टिकल व्हेन reaches at point P, suppose a particle reaches at point P, if at P the horizontal velocity is vx and the vertical velocity is vy, since the horizontal velocity remain constant, इस वाला नोट कर लियो ना, horizontal velocity vx, vertical velocity is vy. Since the horizontal velocity remain constant, therefore vx it is equal to u. For vertical velocity vy, by equation of motion v is equal to u plus ad. V
v इज इक्वल टू वी वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 प्लस जी टी, टी समय में अगर यहाँ पहुँचा है, सो दिस वी वाई इट इज इक्वल टू जी टी। देखना वी एक्स इट इज इक्वल टू यू, वी वाई इट इज इक्वल टू जी टी, then the resultant velocity at p, then the resultant velocity at p, have you noted it? Yes sir. Then the resultant velocity at p, v is equal to root vx square plus vy square, and here you have vx is u, so u square, vy is gt, so it is g square t square, this is v, so this is the resultant velocity. What will be the angle of the resultant velocity? Angle of resultant velocity, here you see, angle of resultant velocity, angle of velocity at p, angle of velocity at p, you have to see tan beta is equal to tan beta, it is vy upon vx, vy upon vx, so vy it is equal to gt upon u, therefore beta is equal to tan inverse gt upon u. gt upon beta it is equal to tan inverse gt upon u. ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स का परसेंटेज 20-25% तक ही होता है, सबसे ज़्यादा डेरिवेशन आते हैं, ध्यान रखना। इसमें तो डेरिवेशन तो ये फार्मूला कैसे आया ये बहुत ज़रूरी है। इस पर भी इसी पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक तो न्यूमेरिकल्स ज़रा देखना, यू कैन नोट डाउन इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। Note down, a bomb is dropped from an aeroplane. Note down the numerical question. A bomb is dropped, bomb, B-O-M-B. A bomb is dropped from an aeroplane when it is directly above a target at a height of, when it is directly above a target at a height of 1000 meter, when it is at a height of 1000 meter. The aeroplane is moving horizontally with a speed of, the aeroplane is moving horizontally with a speed of 500 km per hour. By how much distance the bomb will miss? By how much distance the bomb will miss the target? क्वेश्चन का मतलब पहले समझो।
लिख लो, बाई हाउ मच डिस्टेंस द बॉम्ब विल मिस द टारगेट। देखना जरा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? What is your question? Your question is bomb is dropped from an aeroplane. It is directly above a target. यहाँ टारगेट, ये पॉइंट पे टारगेट, यहाँ पे हमें बम गिराना और इसी समय एग्जैक्टली प्लेन यहाँ पर है। प्लेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इट इज 500 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर। और कितनी ऊंचाई पर है? इट इज 1000 मीटर। 1000 मीटर ऊंचाई पर है। 1000 मीटर की हाइट पर प्लेन है और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये आता है उसी समय एकदम टारगेट पे बम गिरा देता है। तो टारगेट को हिट करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय बम गिराया गया इसकी वही स्पीड होगी जो एरोप्लेन की स्पीड होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये बम यहाँ गिराया भले जाएगा, लेकिन ये गिर करके ये गिरेगा कहीं दूर जा करके। ध्यान रखना। तो ये गिर करके यहाँ पे आके कहीं पे गिरेगा, तो कितना डिस्टेंस मिस करेगा, यही हमें कैलकुलेट करना। दिस डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट, रेंज बताना है। द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली with a speed of 500 km per hour. By how much distance the bomb will miss? तो रेंज हम लोग ऐसे डायरेक्ट किए, तो कितने समय में जमीन पे आएगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर रेंज निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। या रेंज का डायरेक्ट फार्मूला क्या है? R इक्वल टू U/G। हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 500 किलोमीटर। हियर U इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है। G की वैल्यू 9.8 में यूज करेंगे एंड U इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें आ जाएगी और इसको हम चाहें तो ऐसे 9 ऐसे कुछ कर सकते हैं। 1250/9 मीटर पर सेकेंड U आ गया और H मालूम है, G की वैल्यू 9.8, तो R हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूछा गया है कि बाई हाउ मच डिस्टेंस बॉम्ब विल मिस द टारगेट। टारगेट को मिस करेगा, मतलब ये टारगेट से कितना दूर जा करके गिरेगा, तो यही हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये वैल्यू हमारे पास R इज इक्वल टू इट इज 1250/9 2H/G 2 × 1000। G 9.8 है ना, तो G 9.8 है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये 24.9 एक ऊपर चले जाएगा। इट इज 12/9 12 और ये अंदर जाएगा तो ये होगा 10,000। एक डेसिमल को ऊपर ले जाएं तो इट इज 10,000/49, तो कितना हो जाएगा? 1250/9 इंटू 100/7 हो जाएगा। इतना मीटर डिस्टेंस होगी। मेरी बात समझ आ रही है? 1250/9 इंटू 100/7, इसका स्क्वायर रूट इजी हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर नंबर है। 10,000/49 तो वैल्यू हो जाएगी 100/7, तो हो जाएगा इतना मीटर है आएगा। इतना हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मीटर हम डेसिमल में आएगा, एक्यूरेट डिवीजन नहीं हो रहा है, तो डेसिमल में आएगा इतना मीटर। इसीलिए वो फाइटर्स प्लेन वाले होते हैं, अगर टारगेट यहाँ है तो कुछ इतने दूर पे गिराते हैं, उनको पता है, जिसमें उनको पता है कितना डिस्टेंस है, तो टारगेट पे गिराना है तो पहले ही गिरा देंगे, तब नहीं यहाँ जाके तो गिरेगा।
तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी होती। तो कितना मिस करेगा, यही पैरामीटर आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देख लेना जरा। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एप्लीकेशन, क्योंकि डेली लाइफ में तो नहीं, लेकिन वार पीरियड में ही यूज किया जाता है। ये सब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे हिट करना हो टारगेट को। देखना जरा वन मोर क्वेश्चन। 2 tall buildings, have you noted it till now? 2 tall buildings face each other, note down. 2 tall buildings, 2 tall buildings face each other and are at a distance of 180 meter apart. 2 tall buildings face each other. 2 tall buildings face each other and are at a distance of 180 meter apart. With what velocity must a ball be thrown? With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter height, 55 meter है, 55 meter above the ground, above the ground in one building, so that it enters a window, 10.9 meter, enters a window 10.9 meter above the ground in the second building, so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second building. Here, try to understand. Here 2 tall buildings, ये 2 बिल्डिंग्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है 180 मीटर। 2 tall buildings, they are at a distance of 180 meter from each other. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building? एक बिल्डिंग से यहाँ पे खिड़की इसको है, इसकी विंडो है 55 मीटर हाइट पे है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे विंडो है, ये 55 मीटर हाइट पे है। यहाँ से एक स्टोन को फेंका जाता है और यह जा करके जब फेंका जाता है ऐसे, तो गिरता कहाँ पे है, ये दूसरे बिल्डिंग की विंडो में यहाँ जाके गिरता है। और ये विंडो कितनी ऊंचाई पर है, 10.9 मीटर की हाइट पर है। तो अब देखो इसको हम ऐसे मिला लें थोड़ा सा, तो ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। क्लियर? दिस बिल्डिंग का हॉरिजॉन्टल रेंज इट इज 180 मीटर एंड व्हाट विल बी इट्स वर्टिकल हाइट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, दिस हाइट को, अगर एच को कैलकुलेट करें तो वर्टिकल हाइट एच इज इक्वल टू हाउ मच, 55 माइनस 10.9 मीटर होगा। दिस इज 44.1 मीटर, ये आ जाएगा।
क्वेश्चन है विथ व्हाट वेलोसिटी, एक किस वेलोसिटी से यहां से फेंका जाए। मान लेते हैं ये हमारे पास वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से फेंका जाएगा, जिससे जाकर के यहाँ पर विंडो को हिट कर दे। अभी जस्ट हमने फार्मूला बताया है। इसकी रेंज कितनी होगी? 180। r इज इक्वल टू, अब देखो हाइट हम लेंगे कितना, 44.1, तो रेंज का फार्मूला लगाओ, r इज इक्वल टू u रूट 2h अपॉन g। अब हमें u क्यों निकालना है, r की वैल्यू 180 है। इसमें देखो अगर स्क्वायर रूट अगर आराम से हो जाए तो ठीक, नहीं तो स्क्वायर, तो इसमें r की वैल्यू u कैलकुलेट करना है, इसको जरा कैलकुलेट करो, 69, अच्छा u कैलकुलेट करना है, 2h, h की वैल्यू कितनी है 44 अपॉन 9.8, वहाँ पे स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये जो वैल्यू ये करेंगे तो हमारे को 49 होगा और 44121 होता है, हाँ ठीक हो जाएगा। इट इज u रूट तो हट जाएगा, 21 अपॉन 7, हाँ तो ये 180 हो जाएगा, ये दिख रहा है, तो u की वैल्यू आ जाएगी 69, हाँ ठीक, u is equal to 60 meter per second. It means from this, if it is projected with 60 meter per second, then it hit the window. One more question. ये जितना पढ़े हो वही फार्मूले यूज करने, इज इट क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, ए बाइकर स्टैंड्स, ए बाइकर, बाइक वाला बाइकर स्टैंड्स ऑन द एज, इसको पूरा नोट कर लियो ना, उठा दे, a biker stands on the edge of a cliff 490 meter, a biker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial velocity of 15 meter per second, initial velocity of 15 meter u दिया हुआ और हाइट h गिवन है 490 मीटर, ये चीजें गिवन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन, नोट डाउन, फाइंड the time taken by the stone to reach the ground. Find the time taken by the stone to reach the ground and speed with which it hits the ground, and the speed with which it hits the ground. हमें बताना है कि कितने समय में यह जमीन पर पहुंचेगा और कितनी स्पीड से यह ग्राउंड को हिट करेगा, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास 49 मीटर है, 490 मीटर हाइट है, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चलेगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, u इट इज गिवन 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये ग्राउंड पे जाके जब हिट करेगा तो ये हमारे पास इसका, इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, Vx और एक Vy।
हमारे पास ये वी वाई हो गया, वी एक्स हो गया, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वी। और ये मान लेते हैं कि ये जो है रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी वी। जब गिरेगा तब भी उसके दो हॉरिजॉन्टल नहीं जाके ऐसे वर्टिकल गिरेगा, ये किसी एंगल पे ऐसे जा गिरता, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एक्स होगा, एक वी वाई होगा। यहाँ हम रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। क्लियर? तो ये तो आसान हो गया। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू यू टी। यस हमारा 490 मीटर है, यू 0 है, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो हमारे पास ये कितना होगा 4.9 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 490 अपॉन 4.9 मतलब 49, और ये ऐसे कर लें तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर लोगे, हाँ 10 आएगा, 70 अपॉन 7, हाँ ठीक, इट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये तो पता लग गया कि 10 सेकेंड में ये पहुंचेगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट? तो लिखेंगे वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट, हैव यू नोटेड इट? वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी एट एंड पॉइंट, वेलोसिटी एट एंड, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट Vx इज इक्वल टू u, इट इज 15 मीटर पर सेकेंड, ध्यान में रखना, इट इज 15 मीटर पर सेकेंड, एंड वर्टिकल वेलोसिटी Vy इज इक्वल टू u प्लस 0 प्लस gt। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो गिरेगा v इज इक्वल टू यू प्लस जे टी वर्टिकल के लिए, और हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर वी वाई इट इज इक्वल टू 0, g 9.8 और t की भी कितना 10 सेकंड। तो ये हमारे पास वी वाई इट इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द पॉइंट P एट द एंड पॉइंट, therefore the resultant velocity at the end point V is equal to Vx square plus Vy square, and this comes out to be root Vx 15 square plus 98 स्क्वायर। कैलकुलेट करना इसको, एक्चुअली डेसिमल में आता है, इट इज 99.1 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है, हाँ 99.1 मीटर पर सेकेंड। ये इस पर क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रही बात ना? तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़े हो और वर्टिकल पर उस पर ऑब्लिक, उस पर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फार्मूला क्लियर हो रहा है? अब हम लोग पढ़ते हैं, इसी में एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमें एक्चुअली हम हर तरह के मोशंस को पढ़ेंगे, लीनियर मोशन, मोशन इन ए प्लेन, प्लेन में सर्कुलर मोशन भी आता है, अभी हम एंगुलर रोटेशनल मोशन भी पढ़ेंगे। फिजिक्स हर तरह के मोशन की थी, फिर वेव पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जितना मोशन होता है हर तरह के मोशन की स्टडी हम लोग करेंगे, जितना मोशन नेचर में संभव है, स्ट्रेट चलना, कर्व पाथ पे चलना, 1 डायमेंशनल में चलना, 2 डायमेंशनल में चलना, 3 डायमेंशनल में चलना, और अब हमने अभी कर्व पैराबोलिक
पाथ देख लिया। अब हम सर्कुलर पाथ पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि डेली लाइफ इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है सर्कुलर मोशन। तो फिजिक्स जितनी तरह का मोशन है सब पर ध्यान रखती है। तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कितना इम्पॉर्टेंस है कि अगर एक रस्सी से बांध करके किसी चीज़ को घुमाएं, अगर इतना पानी भी एक लोटा जानते हो ना, लोटे में पानी बांध के ऐसे ऐसे घूमे, लोटा जानते होगे ना, बांध करके, डिब्बा तो जानते होंगे, डिब्बे में पानी रख करके अगर ऐसे घुमाते हो, ऊपर जाने के बाद पानी गिरता नहीं। यह कमाल सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता और कहीं नहीं हो सकता। पकड़ के ऐसे घुमाओ, अपने हाथ में पानी लेके ऐसे ऐसे करो, पानी ऊपर जाने पर भी नहीं गिरता। और ये कमाल सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता और कहीं नहीं। लीनियर मोशन में लेकर के ऐसे चलोगे कभी नहीं। जब ऐसे घुमाना शुरू करोगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल उसको बैलेंस करता है। और पूरा नेचर इसी सर्कुलर मोशन पे चलता है। हमारा नेचर पूरा सोलर सिस्टम सर्कुलर मोशन पर है। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि नेचर का पूरा एग्जिस्टेंस सर्कुलर मोशन पे है। मून रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सन रिवॉल्व करता है गैलेक्सी के, गैलेक्सी यूनिवर्स के, मतलब सब मोशन में है और सब सर्कुलर मोशन में है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेचर के सारे मिस्ट्री को ओपन करने का काम फिजिक्स करती है। नेचर में जितनी मिस्ट्री है उस मिस्ट्री को सॉल्व करती है फिजिक्स। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी टाइम कितना बचा? चलो कुछ हो जाएगा थोड़ा बहुत। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Uniform circular motion, here if a body moves on a circular path, इसकी और एक प्रॉपर्टी होती है सर्कुलर मोशन में कि अगर इस पर कांस्टेंट स्पीड से चले, इसके बाद भी इसके मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। तो पहले नोट करो, इफ ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर